Jamboard. इंडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग इसी में चल रहे थे, यही गूगल जैमबोर्ड की शीट, but we cannot add pages in this particular sheet because the restriction is around 20 pages only, so we need to take new Jamboard sheet. लेके रखता हूँ मैं, काम है जो भी है, ठीक है. So let us start. This is 3:10. 10 minutes are gone, but okay, we'll try to cope it up. Oh, hope I'm audible and visible properly. Okay, okay. Thank you so much. Uh, something's good. Okay, so yesterday we have started with the first layer, that is the first layer of OSI reference model. और हम लोग जिसकी बात कर रहे थे ये कि हमारा physical layer, okay? And the main function, the main task of the physical layer was to convert the data into bits, okay? As we have seen, so this basically the basic function of this particular layer is to convert the data into bits, into the 0 and 1 के form में, and vice versa, because if you consider the functions of physical layer at the sender side, then you will find it is different, and at the receiver side it is different, okay? So दोनों जगह पर इनका काम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, so you need to, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है. So whenever we talk about the physical layer, data link, network layer, so at the sender side, ये हमारा sender side है और ये हमारा receiver side है, ठीक है? तो रिसीवर्स आपके सेंटर साइड के अंदर आपका फिजिकल लेयर यहाँ पर है, ठीक है? तो आपका डेटा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, then goes on, and then last your physical layer is going to convert the data into the zeros and one form, 0 1 0 1 0 1, ठीक है? 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा डेटा को, and it will put onto the physical link, or we can say transmission media. It is also called as transmission media. Transmission media मतलब any kind of media from which your data can travel, okay? It may be guided media, it may be unguided media, whatever it is, okay? But your data will traveling through this transmission media, will reach at your destination. At the destination, the very first layer which will be encountered will be is your physical layer, okay? तो ये वाला जो डेटा है आपके पास में 0 1 0 1 0 1 0 1 जो डेटा है, that data will be given to the physical layer. What happened at the center side, your data has been divided into bits by your physical layer, but at the receiver side what will happen, your data will be assembled and they will form the data from your bits by the physical layer at the receiver side, okay? So you can now understand the purpose of your horizontal communication, okay? तो कैसे चीजें पॉसिबल है, ठीक है? your physical layer is doing two different thing at two different places, okay? And the same in the same way, आगे आपका ये जो 0 1 का फॉर्म में जो आपका डेटा मिला है, that data will goes to upper layer, then upper layer, then upper, and then it will be presented to the user, okay? So it established the communication between sender and the receiver. I have not written over here. तो sender और receiver के बीच में क्या करेगा, communication को establish करता है. Why they are saying that it is establishing the communication, because this is the basic thing, conversion of your data into the bits and their bits into the data. So that basically is nothing but the establishing the communication between the sender and receiver, okay? Their functions are defining the data rate, okay? Again, now just consider, this is the sender, this is the receiver, okay? So this is the link, okay? Your sender is trying to send, I'm just talking about this point, okay? Just try to focus.
your sender is trying to send the data with 2 packets per second, 2 packet per second के हिसाब से भेज रहे हैं, and your receiver is not capable of handling 2 packets per second. Okay, it has a capability of only 1 packet per second. Okay, so what will happen, it will accept only 1 packet and 1 packet will be drop. Okay, ड्रॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक का लॉस हो जाएगा, जब एक का लॉस होगा तो आपके सेंडर को 1 पैकेट दोबारा भेजना पड़ेगा. ठीक है, सो देर इज अ नीड और देर इज अ रिक्वायरमेंट दैट के सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, अरे बोलो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, so synchronization is very very important between your sender and your receiver so that they can define the data rate. देख भाई मैं इतनी जोर से फेंकूंगा तो रिसीवर बोलेगा, रिसीवर को बोलेगा रिसीवर तुझे इतनी इतनी स्पीड में कैश करना पड़ेगी. ओके, तो ये है दोनों, ये फंक्शंस है हमारे फिजिकल लेयर के. The third function is signals into bits and vice versa. As I told you that your signals, your signal will be converted, your signal will be converted into the form of bits. Okay, in the form of bits. Okay, and then these bits will be converted, these bits will be converted into again signal or data. ठीक है, by means of the physical layer only. ठीक है, so in short I can say that your the function of your physical layer is to convert the signal into bits and then vice versa. Okay, so signal को bits में और bits को signal में convert करने का काम भी करते हैं. So these are very basic function of physical layer. You have to remember these functions. Anyone can ask you at any moment of time that what are the functions of physical layer. Okay, so the basic function is nothing but to establish the communication. That is the first function, establish the communication between sender and receiver. Second, define data rate. Number 3, synchronize between the sender and receiver. Number 4, signals, it converts signals into bits and vice versa. Okay, so these 4 functions you need to remember. I can ask this particular question at any moment of time. And after the completion of this particular topic, we'll be completing the chapter also. Okay, so after completion of this chapter, there will be a test, there will be a small quiz. Okay, I will be taking on Kahoot application, KAHOOT, Kahoot application है, उस पर आपको ये quiz देना रहेगा. ठीक है, so I'll making the quiz tomorrow. Maybe tomorrow I'll be completing this particular topic or this particular chapter. So after completion of every chapter, will be doing one quiz. Okay, simple short quiz. Okay, and उसको हम लोग consider करेंगे आगे चल के. ठीक है, so these are the 4 basic applications. So why I'm telling you that we have to conduct a small test, because these are the questions which may be asked in the test. Okay, और छोटे सा आपका जो quiz है इसमें question पूछे जा सकते हैं. ठीक है. Okay, whatever I have marked in the green, okay, the physical layer is responsible. That is called the slogan, or we can say that tagline of this particular physical layer. The physical layer is responsible for the movements of individual bits from one hoop to the next hoop. Okay, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आपके एक होप से दूसरे होप तक जाने के लिए आपका फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है. आपके डेटा को आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा कि किसमें, बिट्स में कन्वर्ट करेगा. फिर ये बिट्स आपके ट्रैवल करते जाएंगे रिसीवर के पास में. ये आपका सेंडर या आपका रिसीवर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट होप या आपका सेकंड होप. ठीक है, हो सकता है बीच में नंबर ऑफ होप्स पड़े, बट हम लोग ऐसे डायरेक्ट काउंट करें. तो आपका रिसीवर विल रिसीव इट एंड कन्वर्ट्स अगेन दैट पर्टिकुलर बिट्स इनटू द डेटा सिग्नल. तो यहाँ से ऐसा, यहाँ से वापस से ऐसा. ठीक है, so the physical layer is responsible for the movements of individual bits from one hope. तो आपके बिट्स जो हो रहे हैं वो ये होप से लेकर ये होप तक ट्रैवल हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. आपका फिजिकल लेयर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ओके, आगे चलते हैं. You can just go through the simple diagram. Maybe when this particular question is asked in the examination, so 10 मार्क्स से कम का पूछता नहीं है भाई साहब. इसलिए आपको डायग्राम्स अच्छे से याद में रखना है, इनके फंक्शंस अच्छे से याद में रखना है, इनके जो सब डायग्राम्स है वो भी आपको याद में रखना है. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर सिंपल फिजिकल लेयर. ठीक है, तो सिंपल फिजिकल लेयर के लिए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर के लिए यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, so what is happening in the physical layer? At the physical layer, you know, this is the physical layer.
इट इज रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, दैट इज द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो मे बी देखो ये आपका डेटा था, ठीक है, और डेटा के आगे फिर हेडर लगाया, किसने लगाया, आपके फिजिकल लेयर ने, और उसको कन्वर्ट करके दे दिया कहाँ पर, ट्रांसमिशन मीडिया पर, ठीक है। नाउ योर ट्रांसमिशन मीडिया गोइंग टू कैरी दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और दैट पर्टिकुलर डेटा, and your data will be traveling through the transmission media and will reach to the receiver, okay। तो रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा तो रिसीव हुआ ये वाला, ठीक है, एंड इट विल क्या करेगा, इस हेडर को निकाल देगा यहाँ से, ठीक है, हेडर को निकाल देगा और यहाँ पर आपका जो डेटा रहेगा उसको वो अपर लेयर पे भेज देगा एड टू दी डेटा लिंक लेयर। तो व्हाट योर फिजिकल लेयर इज डूइंग, your physical layer is receiving the data from the data link layer. It is adding the header at the sender side and removing the header at the receiver side, okay। So this process of adding headers and removing headers are called as encapsulation and decapsulation respectively. So this is the process जिसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, और इसको आप लोग बोलेंगे डीकैप्सुलेशन। याद रखो वाइवा क्वेश्चन है, decapsulation, okay। So this is decapsulation where the headers are removed at the receiver side, the headers are removed from the data, so this particular case is called as decapsulation, and at the center side these headers are removed from the data, that is called the encapsulation, okay। So I hope you are understanding what is happening actually at the physical layer, ठीक है। हम लोग बॉटम से टॉप पे जाने वाले हैं, इसलिए एकदम ध्यान से लेके चलो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है देन प्लीज लेट मी नो, we can discuss about that also, okay। So moving to the next layer, that is data link layer, okay, and I hope you can understand at least हम लोग 2 और 3 लेयर ज्यादा से ज्यादा अभी कवर कर सकते हैं, उसके बाद में अगेन ये हमारा कल पे जाएगा and we can complete this particular chapter by tomorrow itself, okay। तो होप सो हमारा जो क्विज है वो भी कल ही हो, लेक्चर खत्म होते होते लास्ट में लोग रखेंगे क्विज। So okay, the second layer is the data link layer, okay, and this is also very important layer, and this particular data link layer is divided into 2 sub layers, okay। इसको 2 layers में divide किया है, what is the responsibility and what are those 2 layers, let us see। So those 2 layers are, one is media access control, that is MAC layer, okay, कहाँ पर है, यहाँ पर। The first is MAC layer and the second one is logical link control। दोनों के छोटे छोटे काम है, लेकिन इसमें ज्यादा काम आपके MAC का है, that is medium access control, okay। So we have divided the data link layer has been divided into 2 categories, 2 types or 2 sub layers। One is MAC, that is medium access control, and second is LLC, that is logical link control। अब दोनों के काम सुनते हैं। मीडियम एक्सेस कंट्रोल का जो काम होता है वो आपके फिजिकल मीडियम को, जो आपका चैनल है, ये कहाँ है चैनल आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका चैनल है, समझ लो आपका ये वायर है, ठीक है। सो मे बी दिस इज योर ट्विस्टेड पेयर वायर, एनी केबल जिसमें से आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर इसका जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करने का ये काम है आपके MAC का, मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करना। ये है आपकी इस फर्स्ट सब लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं MAC, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। जिसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास में बहुत सारे सेंडर हैं, सेंडर 1, सेंडर 2, सेंडर 3, सेंडर 4 एंड सेंडर 5, सो मैनी। तो इस पर्टिकुलर लिंक में से किस सेंडर का डेटा पहले जाएगा, किसका बाद में जाएगा, किसका कैसे जाएगा, वो सब कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक लेयर है जिसका नाम है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इस
मीडियम के, ये जो हमारा मीडियम है, ये जो हमारा चैनल है, इस मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। So that's why this is as a medium access control. Okay, and we have second sub layer, that is LLC, logical link control. Basically the function of this LLC is to establish the communication or establish the link between the physical layer and the data and all other layers. Okay, तो ये फिजिकल लेयर और दूसरी लेयर के बीच में ये काम करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सारे लेयर्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो डेटा लिंक लेयर की जो लेयर है, ये फिजिकल लेयर और बाकी की सब लेयर को इनके अंदर लिंक इस्टेब्लिश करने के अंदर काम करता है। कौन? आपका LLC। ठीक है, तो LLC आपका ये फिजिकल लेयर जो कि नीचे है, एंड ऑल अदर लेयर्स विच आर अबाव द डेटा लिंक लेयर, इट tries to contact or it try to establish the link between these two. Okay, so ये था आपके मैक और LLC के बारे में। मैक और LLC, so this layer packs the data into frames. Okay, कुछ और फंक्शन भी है हमारे डेटा लिंक लेयर के, यही नहीं है। our layer packs the data into the frames also, मतलब जो भी डेटा उसको अपने ऊपर से मिलेगा, so it will try to pack it into, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, आपके फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले क्या करते हैं, they try to, what they do, they got the data or they got the product, and उसको वो अच्छे से पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करके फिर उसके ऊपर से अच्छे से सब पूरा अच्छे से कवर ववर लगा के अच्छे से कोटिंग करके, और अगर बारिश का टाइम है तो फिर अच्छे से मतलब वाटर रेसिस्टेंट जो भी अंदर से प्लास्टिक वगैरह करना है तो वो करने के बाद में उसको सेंड करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द पैकिंग। ओके, सो यूर डेटा लिंक लेयर पैक्स द डेटा इनटू फ्रेम, और जो पैकेट जो बनाते हैं उन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स विद रिस्पेक्ट टू द डेटा लिंक लेयर। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, बिकॉज इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएंगे। सो ये मिला हमको हमारा डेटा। ठीक है, इस डेटा को हम लोगों ने पैकिंग की। ठीक है, पैकिंग इन द सेंस विल पुट इन अ बॉक्स। ओके, विल क्लोज द बॉक्स, विल रैप इट अप विद अ गुड पेपर, विल रैप इट विद द प्लास्टिक। Okay, and now this is your frame. This particular data is now called as frame because we have packed it. Okay, so data link layer packing का काम इसको बोलते हैं framing. Okay, जो packing का काम होता है इसको बोलते हैं framing, and these data packets are called as frames. Okay, so the framing is also done by the data link layer, the second function of data link layer. Okay, converting data into frame is called as framing basically. Okay, and now these frames contain hardware address of the sender and the receiver. Always remember that whenever data is traveling from one point to another point or from sender to the receiver, it will be having 4 different types of data. Okay, the first two data are related to the MAC address, that is the sender MAC address and the receiver MAC address. Okay, and the remaining two data are the sender IP address and the receiver IP address. Okay, so till at this particular layer, at the data link layer, we are not having IP addresses into the action. Okay, हमारे पास में IP address अभी नहीं है. Now we have क्या बोलता हूँ, hardware addresses. Hardware addresses are also called as what? Please let me know. Hardware addresses are also called as, someone from your side. Hardware addresses are also called as, अरे बोलो, hardware addresses are also called as machine address. Okay, and machine addresses are also called as MAC address. Okay, so ये सारे आपके एक ही एड्रेस है। मैं चाह रहा था कि कोई आपके यहाँ से बोले, but I think no one answers to that. So ये सारे के सारे आपके मशीन एड्रेस है, मतलब आपके MAC एड्रेस है, मतलब आपके हार्डवेयर एड्रेस है। ठीक है, you might have seen these addresses in your IP config command, if config command, IP config command में आपने देखा होगा कुछ hexadecimal numbers होते हैं, and these hexadecimal numbers are separated by the colon. ठीक है, जो कि अराउंड कितने बिट के होते हैं हार्डवेयर एड्रेस आपके?
हार्डवेयर एड्रेस आपके कितने बिट का होता है? आईपी कॉन्फ़िग, सी दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस। कहाँ है हमारा? तुम्हारे को आईपी एड्रेस है, ठीक है। लिंक लोकल है, ये आपका IPv6 एड्रेस है, ये हमको रिक्वायर्ड नहीं। आपका यहाँ पर वो भी होगा। अरे कमाल है। IPv6 दिया, IPv4 दिया, सबनेट मास्क दिया, तो डिफॉल्ट गेटवे ये दिए ही नहीं। चेक करना पड़ेगा। आप अपना अगर अगर भी अपना मोबाइल भी आप चेक करोगे ना, तो मोबाइल की हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको शो करेगा। मोबाइल की हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन में भी वो शो करता है। फोन वाईफाई मैक एड्रेस, मैक एड्रेस दे रहा है। ये आपका 1 2 3 4 5 फाइव कोलन्स होते हैं बीच में, ठीक है। आप चेक करेंगे, अब मिल जाएगा। अब इसमें क्यों दे रहे पता नहीं मुझे। तो ऐसा आई थिंक वही था, वो जो नीचे वाला था वो भी हो सकता है। चलो देखते हैं। सो बेसिकली मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आपका जब आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं, और आपका जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है, ठीक है। एंड ये जो होते हैं आपके एट एट, मतलब हर बाइट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय बाय मींस ऑफ कॉलम, ओके। सॉरी, बाय बाय मींस ऑफ कोलन, ओके। सो इन मैक एड्रेसेस they are represented in the form of MAC addresses. Okay, sorry, they are represented in the form of hexadecimal number, and each byte is separated by colon. When we talk about IP addresses, then in IP addresses they are of 32 bit. Okay, मतलब 4 बाइट्स, ठीक है। मतलब हर बाइट आर सेपरेटेड बाय, अगर उसको हम लोग वी हैव मल्टीपल वेज इन विच वी कैन प्रेजेंट द आईपी एड्रेस। we can present the IP addresses in the binary form also. We can present the IP addresses in the we can say hexa, इसको हम लोग अपना डेसिमल नंबर में भी कर सकते हैं। और वी कैन बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ये दो फॉर्म में तो हम लोग उसको करते हैं, बाइनरी डेसिमल, ठीक है। ऑन ईच एंड एवरी बाइट इज सेपरेटेड बाय अ सिंपल डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंटेशन है, इतना याद रखो। आईपी एड्रेस 32 बिट का, और आपका आईपी एड्रेस 32 बिट का, एंड मैक एड्रेस 48 बिट्स का, ठीक है। तो ये दोनों आपके आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वन के आपके आईपी यहाँ पर अभी आईपी एड्रेसेस का भी दूर दूर तक वास्ता नहीं। when will go to the network layer, at this particular layer, the introduction of IP addresses will come. Okay, so here we are having the addresses as the MAC addresses. Okay, so frame contain hardware address of sender and the receiver. As you can see, frame contain hardware address of sender and receiver, and Ethernet address is the MAC address. हमारे पास में कौन सा एड्रेस है अभी? MAC एड्रेस, ठीक है। तो जो फ्रेम यहाँ से हम लोग भेजेंगे, तो दो फ्रेम्स हमारे पास में जो डेटा जाने वाला है, तो उस डेटा के अंदर क्या रहेगा? सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये रहा आपका डेटा, ठीक है। जब ये आगे जाएगा तो आगे जाके ऑटोमेटिकली इसके अंदर हेडर्स बढ़ते चले जाएंगे, और उसमें आईपी एड्रेस ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। The data link layer is responsible for moving frames from one port to the next port. Okay. अगर आपको याद होगा तो इसके प्रीवियस स्लाइड में वी हैव सीन कि हमारा फिजिकल लेयर जो है, द फिजिकल लेयर वाज रिस्पांसिबल the physical layer was responsible of for moving the data or for moving the bits. Okay, because हम लोग डेटा लिंक लेयर पे किसकी बात कर रहे थे? बिट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज योर डेटा इज फाइनली गॉट कन्वर्टेड इनटू द बिट्स, तो बात करेंगे हम लोग बिट्स में। लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप पहले आ जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। सो एट डेटा लिंक लेयर, नाउ व्हाट वी हैव,
वी आर नॉट हैविंग बिट्स राइट नाउ, वी आर हैविंग द फ्रेम्स, ओके, बिकॉज हमने डेटा को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया है, फ्रेम्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो नाउ दोज फ्रेम्स, नाउ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, the responsibility of the data link layer is for the movement of frames from one hoop to the next hoop, okay. So एक diagram हमारे पास में, from this diagram hope you will understand clearly. So we have this source that is system A, and we have multiple systems and system over here, that is D and F and all that, and this B, C, E are the routers, okay. Always remember the routers are denoted with the cross symbol, okay. We have the routers, and why these routers are kept over here, why these routers are kept over here, in order to route, in order to show the route for the packet, okay. So that अभी देखो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल ब्रांचेस है। अब अगर आपको कोई पैकेट अगर यहाँ से आता है, फॉर एग्जांपल सिस्टम ए वांट्स टू सेंड सम डेटा टू सिस्टम डी, ओके। चलो इमेजिन कर लो आपका सिस्टम ए is sending the data to system D, okay. When system A is sending the data to system D, so your packet will reach at this particular router, your packet will reach at this particular router, and your router will be confused, sorry, your packet will be confused कि भाई आपका डेटा कहाँ जाएगा। अगर राउटर नहीं होता तो कौन बताएगा हमारे पैकेट को, बोलो। तो हमारा पैकेट क्या करता, फिर हमारा पैकेट पहले से यहाँ से घूम के आता, यहाँ से जाता, यहाँ पे जाता, इसको पूछता, वो बोलेंगे भाई मुझे भी नहीं मालूम, जाओ उधर आगे जाके देख कर आओ, ठीक है। इफ राउटर्स वर नॉट देयर देन व्हाट कुड हैव हैपेंड, तो ये आप लोग थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। तो बी से सी के पास में गया, सी बोला भाई मुझे नहीं मालूम, एक काम करो आगे से देख के आओ है कि नहीं आपका डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन, अरे भाई डेस्टिनेशन मिल गया हमारा। हो सकता है कि आपका यहाँ से चला गया ई के पास में, ई ने बोला भाई मुझे भी नहीं मालूम, आगे गया एफ तक, भाई एफ बोला भाई मैं तो लास्ट हूँ, मेरे आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे लास्ट में, लेकिन पता है, बट दीज आर द राउटर हु इज डूइंग लॉट ऑफ टास्क फॉर अस and they are showing the route for us, okay, for our packets, okay. So my router B will let me know the path, the correct path to the destination. So my router B will ask this particular packet, okay. तो पैकेट को पूछेगा कि भाई तू कहाँ से आया है, तो पैकेट ए विल टेल द आंसर कि सो आई एम फ्रॉम सिस्टम ए, ओके। तो राउटर भी पूछेगा कि कहाँ जाना है आपको, तो आपका पैकेट बोलेगा मुझे सिस्टम डी के पास में जाना है, ठीक है। तो बी अपने, क्योंकि जब अपना रिफ्रेश करेगा, सो बी विल कम टू नो इट्स द एडजेसेंट राउटर, ठीक है। तो बी के पास में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सी के पास में जो पोर्ट्स कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो बी के पास में सी वालों की इन्फॉर्मेशन, और सी वालों के पास में बी की इन्फॉर्मेशन, बी की इन्फॉर्मेशन ई के पास में, ई की इन्फॉर्मेशन बी के पास में। सो व्हेन राउटर के पास में कोई भी जब पैकेट आता है तो उसके अपने पास में एंट्री करता है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दीज टेबल्स आर नथिंग बट राउटिंग टेबल्स, ओके, जो कि राउटर मेंटेन करते हैं अपने पास में। और ये क्या करते हैं, अपने जितने भी पोर्ट्स है, जितने भी उनके हाथ है, तो सब उनको मालूम। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, ठीक है। सो ये बी का जो एक हाथ है वो कहाँ तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, ठीक है। और ये बी का एक हाथ कहाँ तक जा रहा है, ई तक जा रहा है, ठीक है। तो सी के पास में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है, सी के पास में डी कनेक्टेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन सी को मालूम है। तो सी की इन्फॉर्मेशन जब बी के साथ में शेयर हुई, तो बी विल ऑल्सो कम टू नो दैट कि हाँ सी ही ऐसा राउटर है जो कि मुझे डी के पास पहुंचा सकता है। इसके वो यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका पैकेट बताएगा मुझे डी के पास जाना है, तो बी विल फॉरवर्ड, राउटर बी विल फॉरवर्ड दिस पैकेट टू दिस डायरेक्शन ओनली। व्हाई सो? Okay, so your router B will forward the packet. Your router B will forward the packet towards the C router only, because it knows that the destination is in this direction only, because उसको वहाँ से रिफ्रेश करने पर पता चलता है। ये सब राउटर की प्रॉपर्टी, इसलिए ज़्यादा हमने सोच नहीं करना। So whereas, so your B will let know that your packet का जो destination है, the destination for this particular packet is towards C only. So your packet will go in this direction, will reach at C. C को पूछेगा, C बोलेगा हाँ मेरे पास में।
फिर सी उसको उसके बाद में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग, ठीक है। एंड ये जो आपका पैकेट, रिमेंबर योर पैकेट हैज मूव फ्रॉम सिस्टम ए, पहले कहा पहुंचा बी के पास से, बी इज द इमीडिएट राउटर, इमीडिएट और वी कैन सी द फर्स्ट राउटर आफ्टर ए, ठीक है। तो ये आपका पहला, ये आपका हुआ फर्स्ट होप, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं होपिंग, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट होप, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, गया मेरा, तो यहाँ से आपका पैकेट ने जंप किया और पहुंचा फर्स्ट वाले राउटर के पास में। तो यहाँ पर आपका जो होप काउंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं होप काउंट, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपका जो पैकेट था वो यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया होप काउंट, कितना हो गया बोलो मुझे, होप काउंट आ गया आपका 2। इन द सेम वे फिर ये राउटर से आपके एंड सिस्टम यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। तो होप काउंट कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ए से डी जाने के लिए होप काउंट कितना लगा, होप काउंट कितना आया, 3 आया, ठीक है। Sometimes this question is also asked that what is hope count and how it is calculated, ठीक है। तो ऐसे हम लोग होप काउंट काउंट कर सकते हैं, जितने बीच में स्टेप पड़े उतने समझ लो काउंट करते जाओ, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर डिलीवरी इज कॉल्ड एज होप टू होप डिलीवरी, और यही हमारा डेटा लिंक लेयर हमको प्रोवाइड करता है। आर डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी। होप टू होप मतलब डिलीवरी मतलब अपना एक एक स्टेप लेगा, एकदम लंबी लंबी छलांग नहीं लेगा, एक एक स्टेप। तो फॉर एग्जांपल मैंने भी यहाँ से एक आपको मैसेज किया हाय करके, व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज किया हाय, ठीक है। अभी ये मैसेज मेरा यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं, मेरा मैसेज पहले कन्वर्ट होगा पैकेट में, ठीक है। मेरा मतलब मेरा मोबाइल इसको पहले करेगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव इमेजिनरी ओएसआई रेफरेंस मॉडल हु इज डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। So first of all, that high data, high text message will be converted into the packet, ठीक है। पैकेट में कन्वर्ट हुआ, उसका सोर्स, उसका डेस्टिनेशन, सब एड्रेस साथ में अटैच किया। अब वो मेरे मोबाइल से निकला, निकलते निकलते पहुंचेगा मेरे वाईफाई राउटर के पास में, टू विच आई एम कनेक्टेड, ओके। तो ये हो गया मेरा पहला हो, मेरा पहला स्टॉप, यू कैन सिंपली रेफर इट एज अ स्टॉप। सो यू हैव रीच टू द फर्स्ट स्टॉप नाउ, ओके। फिर ये मेरा जो वाईफाई राउटर जिस राउटर से कनेक्टेड है, ये मेरे जो रीजन के, मेरे एरिया के जिस राउटर से कनेक्टेड है उसके पास में जाएंगे। तो फिर मेरा जो मैसेज है वो वहां से वहां चला गया, ठीक है, मेरे रीजन के वाईफाई राउटर से, फिर वो वहां के वाईफाई राउटर से किसी और, वहां से किसी और, वहां से और, वहां से और, होते 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 वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन, ठीक है। और उसमें जितने भी नंबर ऑफ होप होंगे वो तो अलग है, बट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होप टू होप डिलीवरी। मतलब माई डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉम माई मोबाइल टू माई वाईफाई राउटर, तो इतनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रॉम माई वाईफाई राउटर टू द रीजनल वाईफाई राउटर, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रॉम रीजनल वाईफाई राउटर टू द नेक्स्ट वाईफाई राउटर, इतना ले जाना भी उसकी जिम्मेदारी है। So this is the hope to hope delivery. Okay, what I mean to say. So this is the responsibility of data link layer to provide hope to hope delivery of packet, of data, of information, whatever you are trying to send. I hope you are getting, you are understanding. क्योंकि देखो आगे चल के हम लोग का भी और एक ऐसी ही डायग्राम आएगा, बट इन द नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वहां पर आप लोग समझ जाएंगे इजीली। So understood what happens in the data link layer? See, we are getting the data from the upper layer in the data link layer. This is the data link layer. So this is the data link layer. So this is the data link layer, and I'm getting the data from the network layer, and I'm giving it to the physical layer. ठीक है, इतनी बात याद में रखो। The very first statement you will write about the data link layer is that it receives the data from the network layer and will forward the data to the physical layer. ठीक है, and your data link layer is going to do what? It is going to do frame. ठीक है, see you can see here header, trailer दोनों यहाँ पे लगा इसको, ठीक है। तो header, trailer हम लोगों ने लगाए हैं, हेडर और ट्रेलर हम लोग ने यहाँ पर ऐड करे, प्लस की, ये प्लस की,
इसको बोलते हैं फ्रेमिंग, ठीक है। जो फ्रेमिंग होती है हमारे डेटा लिंक लेयर पे होती है फ्रेमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एंड व्हेन योर डेटा विल रीच एंड व्हेन योर पैकेट विल रीच एट द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन साइड पर या रिसीवर साइड पे क्या होगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट, ओके। योर हेडर विल बी रिमूव, ओके। जो भी चीजें है तो वो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, ये सब निकल जाएगा और फिर आपका डेटा ऊपर जाएगा, ओके। Here your data at the receiver side, at the receiver side data will be received from the physical layer and will be forwarded to the network layer, उसका अपोजिट होगा, that's all. Coming to the next one, I think टाइम हो गया है बट हम लोग को करने के लिए टाइम लगेगा। तो physical layer and data link layer, that is these are the only two layers we have done. Network layer, transport layer, दो में ही ज्यादा कंटेंट है, अदरवाइज द रिमेनिंग आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल 2-2 मिनट की 5-5 मिनट की। सो बेटर वी विल स्टॉप हियर बिकॉज आई एम आल्सो नॉट फीलिंग वेल, बस मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, सो थोड़ा फिजिकल नहीं हो पाता है इतना बोलना। सो 45 हो गए हैं, विल स्टॉप हियर।